There are total 10 chapters. Total 10 chapters in your 12th economics. Like, first chapter is Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. Basically, there are two branches of the economics. Even आपने 11th में भी देखा होगा. 11th का जो economics था, it was more about macroeconomics. Micro versus macro. Both micro and macro are the words derived from like Greek language. उनका Greek origin है. Micro means a millionth part. MI. ठीक है. It means, example, there is a jungle, and if we are studying a particular tree in a jungle, so right, there are many trees, jungle है proper, and उनमें से एक इंडिविजुअल ट्री हम स्टडी कर रहे हैं, ए मिलियंथ पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो स्टडी. एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी में ए सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, राइट. अगर हम वो सेल स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप बोलते हैं. कभी आपने वर्ड माइक्रोस्कोप देखा है? उसमें MICRO है. माइक्रो मींस द मिलियंथ पार्ट. So microscope is used to study the smallest part. On similar basis, right? कोई भी इकोनॉमी ले लो, कोई भी सोसाइटी ले लो, राइट. अगर उसका स्मॉलेस्ट पार्ट अगर स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं हम माइक्रो पार्ट स्टडी कर रहे हैं, या हम लाइक माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैक्रो इज study of the entire body, study of the entire jungle, right? Study of the entire economy as a whole. Sector, पूरा sector study करना. Example, we are studying automobile sector. So I will say we are doing macroeconomic analysis of the automobile sector, MA, macro. But अगर मैं उसमें से टाटा मोटर्स की स्टडी कर रहा हूँ, तो I am studying its individual part or millionth part of the entire industry. So I will be saying I am studying at a microeconomic level. So वो हमें समझना है micro versus macro. Utility analysis is the second chapter, very important chapter. Utility analysis. What do you mean by utility? What are the types of the utilities? What are the features of the utilities? And there are two laws associated with the utility analysis. Law of DMU, diminishing marginal utility, right? Very psychological law, very common law. We face in our day-to-day life, but we never observe that. So law of DMU, and second law is law of EMU, equi-marginal utility. DMU is a diminishing marginal utility, and EMU is equi-marginal utility. इसे दो law studies करेंगे. Then we will also understand the importance of these laws to various people, like for a consumer, for a seller, right, for government. So law study करेंगे, उसका base study करेंगे, and then we will study the importance, that is utility analysis. Once we understand the utility analysis, it becomes very easy to understand demand analysis. Demand, right? Everybody says there is a demand and there is a supply. How market works? What do you mean by demand? What constitutes demand, right? What is the demand function? What are the determinants of demand? Demand किन किन चीजों पे depend हो सकती है या करती है demand? Then, right, what is the law of demand? A very common statement is very common, but implication is like is very I will say importance is very high. Then importance of law of demand. Then we have to understand the quantum of the law of demand. Quantum, law of demand जनरल स्टेटमेंट है. अगर उसको हम क्वांटम या उसको हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, उसका इंपैक्ट,
तो उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. दैट इज चैप्टर 3B. 3A is a demand analysis and 3B is a elasticity of the demand. Yeah, demand elasticity. Again, very practical, right? You will find many numericals in elasticity of demand. And elasticity of the demand is very useful as a business owner or as a business manager, because accordingly you have to decide your marketing strategies. Elasticity of the demand is, right, important to decide your strategies. Right, अगर आप लग्जरी में डील करते हो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? If you are dealing in the necessities, like you are a hospital, like if you are own a medical shop on करते हो, right? These are the necessities, right? You on a school, education system में आप necessity है. What can be your strategy? So वो हमें समझना है under elasticity of demand. Then basically demand has two sides. Market has two sides. एक डिमांड साइड होती है, मतलब कंज्यूमर साइड होती है, एंड दूसरी साइड होती है उनकी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए सेलर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स. सो इकोनॉमी इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, मिनिमम टू सेक्शंस. एक हाउस होल्ड सेक्शन होता है, कंज्यूमर्स, जिनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, एंड दूसरा होता है प्रोड्यूसर्स. They produce the goods and services, they sell it to household consumes it and pays to the manufacturers or producers. There is also a pillar, that is government. So we ignore government, right, for our study purpose. Basically economy can be divided into three pillars or three persons: household, producers and even government. बट हमारे स्टडी में हम खाली दो ही लेते हैं, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स. हाउसहोल्ड की साइड, हाउसहोल्ड को हम स्टडी करते हैं अंडर डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर्स को स्टडी करते हैं अंडर डिमांड एनालिसिस, एंड प्रोड्यूसर्स को स्टडी करते हैं अंडर सप्लाई एनालिसिस. सो सप्लाई एनालिसिस इज योर फोर्थ चैप्टर, right? In that we will understand what do you mean by supply, what do you mean by stock, the difference between stock and supply, then what do you mean by output, then we will understand law of supply, then we will understand, right, the elasticity of the supply as well. जैसे डिमांड क्वांटिफाई करने के लिए डिमांड इलास्टिसिटी है, वैसे ही सप्लाई को क्वांटिफाई करने के लिए, राइट, देयर इज सप्लाई इलास्टिसिटी, वो भी हम स्टडी करेंगे. Then there is a chapter number 5, forms of the market. Market is divided on the basis of many parts. Like आप बोल सकते हो कि लोकल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, एरिया, लोकल मार्केट होता है. एक डिस्ट्रिक्ट मार्केट हो सकता है, एक स्टेट मार्केट हो सकता है, एक नेशनल मार्केट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट डील किए जाते हैं. देयर इज अ कमोडिटी मार्केट जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज डील किए जाते हैं, एंड देयर इज अ लेबर मार्केट जिसमें लेबर, लाइक पीपल, सप्लाई देयर सर्विसेज. सो या उसको फैक्टर मार्केट भी बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट. सो मार्केट कैन बी डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ मेनी पार्ट्स. आप बोल सकते हो फिजिकल मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट, Amazon, Flipkart, राइट, ऑल दीज आर द ऑनलाइन मार्केट, राइट. आपको किधर जाने की जरूरत नहीं, ऑन योर ऐप, मोबाइल में जो ऐप है वहां पे आप परचेस कर सकते हो. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो रिटेल शॉप वगैरह होते हैं, जो फिजिकल ब्रिक्स एंड मोटर वाले जो शॉप्स है, वो फिजिकल है, यू हैव टू गो देयर. हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. सो मार्केट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स. वन ऑफ द बेसिस इज द नंबर ऑफ सेलर्स. उस मार्केट में कितने सेलर है. एग्जाम्पल, if you take example of railway,
railway services, there is only one seller, only one supplier, and that is Indian Railways. Only one. Take another example, like airways देखो, aviation sector देखो. There are many sellers like Air India, Indigo, SpiceJet, right? Then ये मेजर आ गए इंडिया में. किंगफिशर हुआ करता था, अब भी नहीं है. So what I'm giving you example कि वहां पे there are more than 2 to 3 sellers. टेलीकॉम सेक्टर ले लो, भारती एयरटेल, जियो, उसके बाद वोडाफोन आइडिया एंड BSNL. There are 4 players, active 4 players, right? Another example, अगर आप लाइक FMCG सेक्टर लेते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो उसमें लीडिंग में आता है HUL, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, उसके बाद पतंजलि आता है, राइट? देयर कैन बी मेनी, डाबर वगैरह, देयर आर मेनी कंपनीज, मेनी सेलर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स हम मार्केट को डिवाइड करने वाले हैं, वो हम स्टडी करने, बाकी हम नहीं स्टडी करने वाले. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, हम ये स्टडी नहीं करने वाले. हम जो स्टडी करने वाले हैं, द फॉर्म्स ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स. कितने सेलर्स है उसके बेसिस पे हम स्टडी करने वाले हैं. सो बेसिकली इफ देयर इज सिंगल सेलर, ओनली वन सेलर, लाइक रेलवे, या जनरली अगर आप देखोगे डिफेंस में जो गुड्स मैन्युफैक्चर, डिफेंस के इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, दे कैन बी शिप्स, दे कैन बी एयरक्राफ्ट्स, राइट? लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब मैन्युफैक्चर, लाइक उसको बनाना होगा, जो कुछ भी होगा उसका फॉर्मूला वगैरह जो भी बनाना होगा, there are no seller, there are just single seller. Government does not, right, is a very sensitive related to that, and they don't allow others to produce. तो उसमें एक ही सेलर है. समझ में आ रहा है? इसरो, दिस लाइक सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च वगैरह करना, एक ही प्लेयर है मार्केट में. सो आई कैन से सच मार्केट इज डोमिनेटेड बाय सिंगल पर्सन. उसको मोनोपोली बोला जाता है. मोनो मीन सिंगल, mono means single, poly means seller. The market which is dominated by single person, single seller, single producer is called as monopoly market. Best example in India is the railways. Second, if there are only two sellers, if there are only two sellers, such market will be called as duopoly. Duopoly. Like many people say that in Indian telecom sector may become duopoly because Vodafone Idea is into losses. They may shut down their operation at any point of time. And you know the position of the BSNL, right? So it seems, oh, right, in coming 3 to 4 years, BSNL and Vodafone may shut down, and there will be only two sellers. One is Bharti and another will be Jio. And then if there are only two sellers remains, that market will become duopoly market. Duo matlab two, poly means seller, दो seller वाला market. Then like मैंने एविएशन सेक्टर का एग्जांपल दिया, बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें मोर देन टू सेलर्स है, बट नॉट मेनी, दैट दे आर लेस. मोर देन टू मींस सिंगल भी नहीं है, मोनोपोली भी नहीं है, दो भी नहीं है, डिओपोली भी नहीं है. दे आर मोर देन टू but not very large number of sellers. In that case, such market is called as oligopoly market. Oligopoly market. Then, and वो जो कम लोग होते हैं ना, कम ही सेलर है, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है, and they dictate the market. Literally, they dictate the market. Today, telecom market is an oligopoly market because there are more than two sellers. BSNL वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, बट बाकी जो तीन लोग हैं,
तीन प्लेयर्स है, भारती, जियो एंड वोडाफोन आइडिया। बीच में आपने देखा होगा 2-3 मंथ पहले कि ऑल कंपनीज इंक्रीज दियर डेटा टैरिफ्स। जियो केम एंड दे डिक्रीज द टैरिफ्स सब्सटेंशियली, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम प्लेयर्स लॉसेस में चले गए। देन latter point of time, because of TRAI's regulation, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन की वजह से दे इम्पोज सम पेनल्टी टू ऑल द टेलीकॉम लाइक प्लेयर्स। वो कुछ अलग है, उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया अलग है, एंड उस रेवेन्यू के हिसाब से दे हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, राइट। इन दैट केस वो उन्होंने पेड नहीं किए थे, उनका रेवेन्यू का जो टर्म है ना वो अलग था, ट्राई वालों का रेवेन्यू का टर्म अलग है। एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने ये देखा होगा कि एक टेलीकॉम वालों का एक टावर रहता है एंड दे गिव इट रेंटल टू अदर टेलीकॉम प्लेयर एज वेल। लाइक मेरे गांव में आओगे तो टावर है एग्जाम्पल एयरटेल का, वहां पे जियो का भी है, वहां पे वोडाफोन का भी है, एक ही टावर में सब कुछ है। दैट इज बेसिकली ओन्ड बाय जियो एंड दे चार्ज रेंट फ्रॉम एयरटेल एज वेल एज वोडाफोन। तो ऐसे होता है बहुत बार। आपने ये भी सुना होगा कि स्पेक्ट्रम राइट्स, ये बहुत यूपीए के केस राइट जब गवर्नमेंट थी तब स्कैम हुआ था स्पेक्ट्रम। सपोज एयरटेल ओन्स दैट स्पेक्ट्रम्स, they may give it on rental basis to other telecom players। बहुत बार दे शेयर द स्पेक्ट्रम्स, उससे उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। तो अब एग्जांपल, एयरटेल हैज अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम देयर टॉवर्स, they have earned rental income from their towers, they have earned rental income from the spectrums। try considers that as a revenue, it is revenue, but गवर्नमेंट के साथ जो शेयर करना है, गवर्नमेंट का ऐसे है कि अगर आप 100 रुपीज कमाते हो तो हमें सपोज 20 रुपीज हमें दे दो, 80 रुपीज आपके पास रहेंगे। दैट इज गवर्नमेंट के जो भी एग्रीमेंट है वैसे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट शेयरिंग, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 रुपीज अगर आप कमाते हो तो 20 रुपीज आपको गवर्नमेंट को देने। अभी 100 रुपीज जो कमा रहे हो उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है कहाँ पे भी लिखा नहीं है। तो ये जो टेलीकॉम प्लेयर्स है वो बोल रहे कि ये 100 रुपीज हमारे टेलीकॉम मतलब कॉलिंग डेटा वगैरह उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो लेना चाहिए, कि ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हम कमा रहे हैं, लाइक हम रेंटल इनकम कमा रहे हैं में, राइट। वो जगह पे ऐसे भी है कि टेलीकॉम ऑफिसेस में एटीएम भी है, बड़े बड़े टेलीकॉम ऑफिसेस में एटीएम भी है, तो वहां पे भी उनको रेंट इनकम मिलती है फ्रॉम द बैंक। तो बोल रहे ये थोड़ी, ये अदर इनकम है, ये हमारी मेन इनकम नहीं है, तो इसमें से हम 20 रुपीज क्यों दे गवर्नमेंट को, 20% क्यों दे। गवर्नमेंट बोलती है हमने बोला टोटल रेवेन्यू, मतलब उसमें सब आ गया आपका। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी एंड गवर्नमेंट का मानना था कैसे भी कमाओ हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कॉलिंग से कमाओ, डेटा चार्जेस से कमाओ, या आप रेंट से कमाओ, या अदर कुछ आप रद्दी भी बेचोगे और उससे जो पैसा आता है उसमें भी हमें 20% देना है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मीनिंग अलग था और टेलीकॉम कंपनीज का रेवेन्यू का मीनिंग अलग था। एंड टेलीकॉम कंपनीज, राइट, उस ऑब्वियसली टेलीकॉम कंपनी को 20% देना है, तो वो खाली कॉलिंग एंड डेटा से जो पैसा मिल रहा था उसका 20% शेयर कर रहे थे, और गवर्नमेंट बोल रहे थे कि हमें ये बाकी जो पैसे आपको मिल रहे हैं रेंट वगैरह ये सब चीजें, इनका भी हमें 20% चाहिए। तो ऑब्वियसली ये झगड़े हुए और लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट बोल रही दैट इज करेक्ट, एंड आपको ये बाकी सब जो इतने दिनों से आप कमा के बैठे हो 10 साल 15 साल 20 साल, ये जो बाकी अदर इनकम है आपकी, एंड दैट इज अ सब्सटेंशियल इनकम ऑब्वियसली, उसका 20% आप गवर्नमेंट को दे दो, एंड दैट अमाउंट इन 1000 ऑफ करोड़। तो उसकी वजह से अब ये उन पे बोझा आ गया, राइट, एक एडिशनल बर्डन आ गया कंपनीज पे, सब पे आ गया ना, एक कंपनी पे एप्लीकेबल हो गया मतलब सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। नाउ दे हैव टू पे दैट विद इन लाइक 2 to 3 मंथ्स उनको पे करना था। नाउ हाउ कैन दे अर्न दैट मनी, तो उन्होंने सबने मिला के क्या कर दिया,
राइट, इंटरनेट चार्ज, डेटा चार्जेस इंक्रीज कर दिए सबने। इसी वजह से किसी का कोई कस्टमर इधर का नहीं उधर जाएगा, कुछ नहीं, सबने डिसाइड किया है। ये तीन प्लेयर, तीनों ने डिसाइड किया, बीएसएनएल का तो अलग चलता है, राइट, तीनों ने मिला के रेट्स इंक्रीज कर दिए सो दैट दे कैन रिकवर एटलीस्ट सम अमाउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे ओलिगोपोली मार्केट में देयर इज अ कार्टेल, कार्टेल मतलब एक एसोसिएशन, एंड दे कम टुगेदर एंड दे डिक्टेट द मार्केट, बिकॉज हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, हम इन तीनों के सिवा किधर जाए। हमारे पास एक तीन ही ऑप्शन, और तीनों साथ में आके अगर सेम रेट दे रहे तो हमें, राइट, आप सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं कि हम कोई दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर ढूंढे, नहीं। हाँ, एयरटेल वाला 100 में दे रहा है और जियो वाला 80 में दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हम 80 वाला लेंगे। तीनों 100 में दे रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में, जिसमें 2 से ज्यादा सेलर्स होते हैं बट नॉट लार्ज, 2 3 से 10 के बीच में अगर सेलर्स है, जनरली ऐसे बोला जाता है इट इज ओलिगोपोली मार्केट। एक सेलर वाला मोनोपोली, 2 सेलर वाला डिओपोली, 3 से 10 सेलर वाला ओलिगोपोली मार्केट। उसमें ये लोगों में एसोसिएशन होती है, दे इंक्रीज द चार्जेस साइमल्टेनियसली और दे डिक्टेट द मार्केट। दूसरा, उससे थोड़ा ज्यादा जो हम रियलिटी में देखते हैं, मेनी, बहुत सारे गुड्स में यू विल फाइंड मेनी नंबर ऑफ सेलर्स, सच मार्केट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। फोर्थ फॉर्म ऑफ द मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक, जो रियलिटी है। ओलिगोपोली इज ऑल्सो रियलिटी, यस, मोनोपोली इज द रियलिटी, डिओपोली रियलिटी, बट सबसे कॉमन जो हमें दिखता है वो होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स selling almost same commodities, same goods and services with some difference। वो हम स्टडी करेंगे। एंड सबसे एंड में जो अनरियलिस्टिक मार्केट है, जो मार्केट एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं, वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। Many of the microeconomic theories are given assuming that the market is perfect market. In reality, there is no perfect market or perfect competitive market. But जब भी हम स्टडी करेंगे वेरियस लॉज, हम एज्यूम करके ही चलते हैं कि ये परफेक्ट मार्केट है। So these are the types of the market that we have to study. We have to study from the angle of, or from the point of view of the seller. कितने सेलर है उसके हिसाब से हमें मार्केट स्टडी करना है। इवन नंबर ऑफ बायर्स के हिसाब से भी मार्केट स्टडी किया जाता है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो दैट इज फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। सिक्स्थ चैप्टर इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेटिव नंबर। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, सेंसेक्स, निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जितने सारी कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से 30 कंपनीज जो प्रिडोमिनेंटली जो ट्रेड होते हैं शेयर्स, 30 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है सेंसेक्स। जब हम बोलते हैं सेंसेक्स ऊपर गया, मतलब जनरली ये 30 कंपनीज के जो शेयर्स है वो ऊपर गए होंगे। जब हम बोलते हैं कि सेंसेक्स डिक्रीज हुआ, कम हो गया, तब हम बोलते हैं 30 कंपनीज का, राइट, मे बी शेयर प्राइजेस कम हुए होंगे। एंड निफ्टी में 50 कंपनीज हम कंसिडर करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, दैट इज निफ्टी, निफ्टी 50 बोलते हैं, उसमें 50 कंपनीज का ये होता है, राइट, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर हमें मिलता है, इंडेक्स नंबर। देयर आर बैंक निफ्टी एज वेल, जिसमें जितने सारे बैंक्स हैं, राइट, उनका एक पोर्टफोलियो है। जितने सारे बैंक्स हैं, लाइक आरबीएल, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, दे ऑल आर लिस्टेड। समझ में आ रहा है? वो सब लिस्टेड है। एंड उनका एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर, उनके जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, सेंसेक्स पे या निफ्टी पे, जो कुछ भी है, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर, उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। अगर आप निफ्टी पे देखते हो तो उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। सो देयर आर मेनी
लाइक ऐसे आपको ऑटोमोबाइल का मिल सकता है, आपको ऐसे टेलीकॉम का मिल सकता है। अब जाके देखोगे तो यू विल फाइंड मेनी रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। समझ में आ रहा है? एक इंडेक्स नंबर। एंड इवन आई विल, जब मैं ये चैप्टर लूंगा तो आई विल आल्सो टीच यू हाउ निफ्टी इज डिराइव्ड। निफ्टी कैसे डेली कैसे निकालते हैं वो लोग, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग, इंडेक्स नंबर्स। 7 is national income. National income is, there are many 10 to 11 variants of a national income. National income means income of a country. Simple words में GDP, बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा कि जीडीपी इंक्रीज होता है, जीडीपी डिक्रीज होता है, लाइक दैट। हमें जीडीपी समझना है। एक्चुअली जीडीपी करेक्ट है या जीडीपी से भी बेटर टर्म कोई है तो ये हमें समझना है। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, there are 3 ways by which we can calculate GDP। एक इनकम मेथड होती है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होती है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक आउटपुट मेथड होती है। ऐसे 3 मेथड से, तीनों मेथड से हमें नेशनल इनकम ढूंढनी है। एंड देयर आर ऑलमोस्ट 9 to 10 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द नेशनल इनकम। उसमें से विच इज द बेस्ट एंड गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है, ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। वो है आपका नेशनल इनकम। To be very frank, national income, many people say is a very theoretical, but it's one of the most important aspect in our day-to-day life। हम डेली 2-3 दिन में तो सुनते हैं जीडीपी जीडीपी जीडीपी, वो एक्चुअली क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकली वो हमें समझना है। दैट इज नेशनल इनकम। देन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। एग्जाम्पल, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट रो रही है कि उनके पास फंड्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट रो रही है कि उनके पास फंड्स नहीं है। समझ में आ रहा है? या जब ये फंड्स नहीं है, या जो ईयरली बजट अनाउंस किया जाता है, वो बजट हमें समझना है। बजट समझना है, कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बेसिकली इट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिसमें द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी शोन एंड द पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी शोन। एंड वो 3 इयर्स का होता है, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर एंड एक फ्यूचर ईयर। ऐसे 3 ईयर का बजट रखा जाता है, एक एक्चुअल, एक फोरकास्ट करंट वाला, राइट, एंड एक टोटली फोरकास्ट। ऐसे एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है इन पार्लियामेंट। उसके कंपोनेंट्स, व्हाट कंस्टिट्यूट्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट और रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एक्सपेंडिचर और पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब उसमें आएगा। अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। सो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, right, how government raises the finance and uses that finance for the development purpose, for the non development purpose, दोनों वो हमें स्टडी करना है इन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इट टॉक्स अबाउट बेसिकली banking institutions, financial institutions like RBI is apex bank, सबसे ऊपर RBI है। एक्चुअली बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि आरबीआई डील्स इन द बैंकिंग एंड जो हाउसिंग बैंक है ना, हाउसिंग, जो हाउसिंग सेक्टर को लोन देते हैं, एचडीएफसी इज एचडीएफसी बैंक इज अलग एंड एचडीएफसी लिमिटेड अलग। ट्राई टू अंडरस्टैंड एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड का लोगो रेड होता है, चाहे तो आप गूगल पे सर्च करो, एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का लोगो ब्लू होता है। दे आर डिफरेंट। एचडीएफसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आईसीआईसीआई जो बैंक थी उससे एचडीएफसी बनी है, उससे ही, मतलब एक बंदे ने वहां पे उन्होंने क्या किया, ही थॉट दैट कि इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस की बहुत जरूरत होगी आगे जाके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, ट्रिमेंडस स्कोप इन हाउसिंग फाइनेंस। मतलब हाउस परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग से फाइनेंस होना चाहिए। एंड विद दैट थॉट प्रोसेस he came up with a new bank, that is HDFC Limited। HDFC Limited का एक ही पर्पस था
हाउसिंग के लिए फाइनेंस रेज करना, हाउसिंग फाइनेंस में काम करनी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंक जो एचडीएफसी लिमिटेड है अच्छे से ग्रो हुई एंड उसके अलग अलग सब्सिडरीज बने एंड वो धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक बन गई, दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक provides banking services. HDFC Limited does not provide banking services. HDFC Limited just provide loans to like houses. अगर आपको फ्लैट परचेस करना है, you don't go to HDFC Bank, you go to HDFC Limited. Try to understand. So banking related finance उनका HDFC में, ICICI का वैसे कुछ नहीं है, ICICI सब कुछ देती है, उनका अलग ऐसे कुछ नहीं है। जैसे HDFC का पर्पज ही था कि हमें हाउसिंग के लिए आना है और बाद में उन्होंने अदर बैंकिंग सर्विसेज में एंट्री की, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग सब्सिडरी बना दी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे जो हाउसिंग, डीएचएफएल पता होगा आपने, लास्ट ईयर डीएचएफएल का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। डीएचएफएल शाहरुख खान ऐड करता है, देखो, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, another example which only deals in the housing finance for the housing. So ऐसे एचडीएफसी लिमिटेड, डीएचएफएल इनको गवर्न करती है, राइट? उनका दे आर नॉट लेड बाय और दे आर नॉट कंट्रोल बाय आरबीआई, राइट? आरबीआई बैंक्स को डील करती है, बैंक्स को कंट्रोल करते हैं बैंक्स। हम अगर एचडीएफसी में जाते हैं या डीएचएफएल में जाते हैं तो हमें उनको वहां से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, हमें व्हीकल लोन नहीं मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें खाली हाउसिंग लोन मिलेगा। अगर मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो मुझे एचडीएफसी बैंक में जाना पड़ेगा, ना कि एचडीएफसी में। और एचडीएफसी, आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर आप बैंक में भी जाओगे, आप बोलते हो मुझे हाउस, आपका अकाउंट है बैंक में और आप बोलते हो मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, तो वो आपकी फाइल लेंगे और वो एचडीएफसी लिमिटेड के ऑफिस में भेजेंगे। दे विल कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, बट लोन इज नॉट डिसबर्स्ड बाय द बैंक, लोन इज डिसबर्स्ड बाय द एचडीएफसी लिमिटेड। सो अगर आप डीएचएफएल में जाते हो, बोलते हो आप, राइट, मुझे आपसे पर्सनल लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, दे वोंट गिव यू बिकॉज दे गिव ओनली हाउसिंग लोन, नॉट मोर देन दैट। उनका लिमिटेड पर्पस है, बट दैट पर्पस इज वेरी, और दैट बिजनेस इज वेरी लार्ज इन इंडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन है जो उनको डील करती है, बट हम वो स्टडी नहीं करने वाले, राइट? नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं उसको, वो सब ऐसे हाउसिंग फाइनेंसेस को रेगुलेट करती है। जैसे एग्जांपल, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? लाइक आपको इंश्योरेंस सेक्टर बोला, बैंकिंग के लिए हम बोलते हैं एसबीआई है, सॉरी आरबीआई है, राइट? बैंकिंग के लिए आरबीआई है। उसके बाद इंश्योरेंस हुआ आपका, और क्या, सपोज सीए प्रोफेशन के लिए आईसीआई है, सीएस के लिए आईसी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्या, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऐसे एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरे प्रोफेशन को या पूरे सेक्टर को कंट्रोल करती है, राइट? ऑन सिमिलर बेसिस हम स्टडी करने वाले फंक्शंस ऑफ आरबीआई। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक नेशनल बैंक, राइट? दैट इज, राइट, in Indian case it is RBI. What are the functions of RBI, right? सेंट्रल बैंक जिसको बोला था, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग एंड सेंट्रल बैंक अलग। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। लाइक अगर यूएस में जाते हो फेडरल बैंक, इंडिया में आते हैं तो आरबीआई। उनके फंक्शंस, कोई भी सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, राइट? व्हाट आर देयर ड्यूटीज या व्हाट आर देयर टास्क, वो टास्क हमें समझने। एंड उसके बाद वी विल स्टडी द बैंकिंग एज सच। बैंकिंग के व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग, राइट? व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाट आर देयर प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, लाइक दैट। सो वो सब आएगा आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। उसके बाद द लास्ट चैप्टर इज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, राइट? सो दिस इज लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में है, राइट?
फॉरेन ट्रेड, उसके डेफिसिट्स वगैरह, राइट, वो सब हमें समझना है. दैट इज द लास्ट चैप्टर. व्हाट इज द चेंज इन द सिलेबस? सिलेबस में एग्जाम्पल, अर्लियर एक एग्रीगेट्स बोल के चैप्टर था. एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लॉ ऑफ केन्स, लॉ ऑफ कंजम्पशन था. केन्स, लॉर्ड जे एम केन्स ने एक लॉ दिया था, एंड बहुत अच्छा लॉ था. अगेन नाम ही था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. इट इज साइकी ऑफ ए पर्सन. वो उसने लॉ दिया था. वो एग्रीगेट्स चैप्टर था, वो उन्होंने डिलीट किया है. वो चैप्टर ऑलमोस्ट वाज इक्वल टू 3 to 4 चैप्टर्स. एक अकेला चैप्टर 3 to 4 चैप्टर्स हुआ करता था. इट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 8 to 9 लेक्चर्स फॉर मी टू कवर दैट सब चैप्टर. बहुत लेंथी चैप्टर था. वो उन्होंने डिलीट किया है. एंड इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव ब्रॉट इंडेक्स नंबर. देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये पहले भी था बट उसमें बहुत सारी एडिशन की है इस बार. एंड जो लास्ट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, दैट इज राइट न्यूली एडेड चैप्टर. सो दैट इज द चेंज इन द सिलेबस. ठीक है. सो ये अपना ओवरऑल सिलेबस है. अभी तक हमें एग्जैक्टली क्या पैटर्न है ये पता नहीं है. सो लेट मी चेक. टेक्स्ट बुक में भी नहीं है कहाँ पे कि एग्जैक्ट हमारा क्या क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट रहता है, बट जनरली मैं बोलता हूँ लिख लेना एक पैटर्न. आई विल डिस्कस दैट पैटर्न विथ यू. लिख लेना. एंड इट इज मोर प्रैक्टिकल. नाउ दे हैव मेड मोर प्रैक्टिकल. मतलब पर्सनली आई लाइक द सिलेबस. इट्स मोर इंफॉर्मेटिव, मोर प्रैक्टिकल, एंड जो अपने सराउंडिंग में होता है रिलेटेड टू दैट. सो आई विल शेयर माई स्क्रीन विथ यू. जस्ट गिव मी मिनट. I will share the last year's question paper format. I feel that the last year के पेपर फॉर्मेट ही फॉलो होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी टाइम बहुत कम है फॉर ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. लाइक कल ही आईएससी के 100 मार्क्स के पेपर्स हुआ करते थे. 100 मार्क्स के, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 20 मार्क्स. सॉरी, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 80 मार्क्स. रिड्यूस बाय 20 मार्क्स. मतलब आगे से इस ईयर में उनके 80 मार्क्स के पेपर होंगे. 20 मार्क्स विल बी गिवन बाय द स्कूल. तो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं. तो महाराष्ट्र बोर्ड में भी चेंजेस आ सकते हैं. भाई आपके तो वैसे भी 80 मार्क्स के पेपर होते हैं. ठीक है. एक सेकंड. लेट मी ओपन इट. या मैंने इनके बैच में दिया था ये. हाँ, एक सेकंड. यस, मिल गया मुझे.
Okay, write down the format. और मेरे हिसाब से जनरली ऐसे ही रहेगा. One good point about economics is it's scoring. अगर आप ठीक से करोगे ना, it's scoring. ऑलमोस्ट 90 के आगे मार्क्स आते हैं, 85 के आगे निकलते निकलते. बट आपने ठीक से करना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर, लगता है थ्योरी है. प्रॉब्लम क्या है पता है? लगता है थ्योरी हम कर लेंगे, बट वैसे होता नहीं. यही तो थ्योरी की सबसे बुरी बात है, होता नहीं. अगर होता ना तो बहुत अच्छा होता. खुद होके होती नहीं कोई चीजें, करनी पड़ती है वो. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, ठीक है, लिख लेना. And always focus on the question paper format for the board exams, because we must know कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है. लिख लेना. फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 A is fill in the blanks. जो मैं शेयर कर रहा हूँ लास्ट ईयर का है, बट पर्सनली आई फील द सेम फॉर्मेट विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, fill in the blanks with appropriate alternatives. Given, so they will give you 3 options. 3 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करने आपको. ठीक है, 3 to 4 देते हैं, डिपेंड्स. मिनिमम 3 रहेंगे, ज्यादा ज्यादा 4 रहेंगे हर क्वेश्चन के नीचे. एमसीक्यू टाइप एक सिलेक्ट करके आपको लिखना है. सो 5 multiplied by 1, this is 5 marks. So 5, you have to fill 5 questions, right? Second, B, match the correct pairs. Correct pairs. इसमें ग्रुप A you have to match with the group B. Group A में they will give 5 items. However, group B में they will give 8 items. You have to match them. अगर 5 के बदले 5 होते ना तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. वाई? एक गलत होगा तो 2 गलत हो जाते हैं. 5 आइटम्स के सामने अगर 5 आइटम्स ही होंगे तो एक गलत होगा तो एक्चुअली 2 गलत हो जाते हैं. बट इसमें उसके चांसेस बहुत कम है. एक गलत होगा तो जनरली एक ही गलत होगा, ना कि 2, बिकॉज यू हैव मेनी अल्टरनेटिव्स. ठीक है, सो अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लेना. नेक्स्ट, state the following statement is true or false. You have to just mention true or false. You are not supposed to write why it is true or why it is false. ठीक है, state whether following statement is true or false. ठीक है, again they will give you 6 statements, so it is 6 multiplied by 1 mark each for 6 marks. You have to just state whether true or false. If it is false, you are not supposed to write the reason. So this is C, not B. Then, so total कितने मार्क्स का हो गया वो? अच्छा,
कितने मार्क्स का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन 1 is of 16 marks. 5 plus 5 plus 10, 16 marks. Next, question B या question 2, define or explain the following concept. The following concepts, right? You have to any 3 out of 6 given. They will give 6 options. उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं. 3 questions for 2 marks each, 6 marks. So, example, demand. So you have to write the definition of demand. Example दे रहा हूँ. Supply. You have to write the definition of supply. What is elasticity? You have to write the definition of elasticity like that. Define or explain the following concept. This is 2A, 2B. 2B is give reasons. Give reason. Okay. Give reason. You have to attempt again any 3 out of 6. Any 3 out of 6. So I can say 3 multiplied by 2. Again for 6 marks. यहाँ पे आपको रीजन देना है. Then they will give a statement and उसका रीजन देना है आपको. Question number 3A. 3A is distinguish between. Right. Same. Any 3 out of 6. And this is again 3 multiplied by 2. 6 marks. Then write the short notes B. Again, any 2 out of 4. So it is for 2 questions for 3 marks each. 6. Question 2 overall 12 मार्क का था. ये 12 मार्क का था. ये भी 12 मार्क का है. ठीक है. Then question number 4. There is no sub question, just question number 4. Write short answers. Write short answers. So any 3 out of 6. You have plenty of options. Huh? Any 3 out of 6. It is for 12 marks, मतलब 3 multiplied by 4. Question number 4 is of the 12 marks. Question number 5. पेपर लेंदी है, पेपर ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स टू चूज
पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6 में से 3 लिखने हैं। आप बोलोगे यार सर ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट द प्रॉब्लम ये आता है कि कौन से सिलेक्ट करूं। और अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया जिसमें ज्यादा लिखना है तो टाइम चला जाता है। इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग टू कवर द इको एंड ओसीएम पेपर्स। सबसे पहला चैलेंज है पेपर कवर करना, वही बहुत बच्चों का होता नहीं, बिकॉज यू कैन सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लार्ज, राइट। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री। विथ रीजन, विथ रीजंस, ठीक है। सेम, एनी 3 out of 6। again for 12 marks, 3 questions for 4 marks each, 12 12। and the last question is explanatory answers, right? Explanatory answers, any 2 out of 4, 2 questions, 6 marks each। it is for, sorry, 8 marks each रहता है। total 80 marks। 16, yes, 28, 28, 30, 40, 40, 52, 52, 64, 64 plus 6, 70, 70 plus 10, 80, perfect, 80 marks। now you can see total number of questions you have to write। first 60 marks की simple, वो easily हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, you have to write 3 questions, 3 plus 3 6, 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हो गए 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 में हो गए टोटल 5 क्वेश्चंस, 6 plus 5 11, 11 plus 3 14, 14 plus 3 17, 17 plus 2 19, 19 क्वेश्चंस। एंड अगर आप देखोगे, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के इक्वल टू रहते हैं। सो ऑलमोस्ट यू हैव टू राइट 19 क्वेश्चंस एंड देन एमसीक्यूज। मतलब पहले तो हम ये पहले करेंगे 16 मार्क्स, बट स्पीड होना चाहिए एंड मैं बोलता हूँ पिट पैट होना चाहिए। देयर इज नो टाइम कि आप सोच के लिख रहे हो इसका आंसर क्या रहेगा, पेपर कभी कवर नहीं होगा। एंड इट इज पॉसिबल इन इको, ये मैं आपको बोलता हूँ, इको लिटरली बाय हार्ट हो जाता है। रीजन इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट लाइक 11th इको, राइट, इट्स मोर ऑफ द प्रैक्टिकल, और एक बार समझ में आ गया लाइफ में नहीं भूलते इको। 12th इको इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स मोर इंटरेस्टिंग, कंसेप्चुअल, प्रैक्टिकल, हम हमारे साथ लिंक कर सकते हैं हर कंसेप्ट, बिकॉज वी आर स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर एज ए बायर एंड एज ए सेलर। सो अगर आप देखते हो, अगर यही पैटर्न रहा तो ऑलमोस्ट यू हैव टू राइट 19 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स। एंड यू नो महाराष्ट्र बोर्ड में जितना लिखोगे उतना कम है, कंटेंट मैटर्स ए लॉट इन महाराष्ट्र बोर्ड। सो इट इज चैलेंजिंग, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जो भी चीज पढ़ोगे उसको रिवाइज भी करना इंपॉर्टेंट है, एंड वो चीज समझ में आ जाएगी। मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूँ, चीज समझ में भी आ जाएगी। इवन आई विल ऑल्सो गिव यू शॉर्टकट्स टू रिमेम्बर द पॉइंट्स, वो भी पॉइंट्स याद रहेंगे, बट स्टिल आप जितने बार पढ़ोगे उतना आपको वो कंसल्ट होगा आपके माइंड में। एंड यू हैव जस्ट 3 आवर्स टू राइट एवरीथिंग, एंड टाइम, मैं पहले ही बोलता हूँ, फर्स्ट चैलेंज इज टू कवर द पेपर। ये चैलेंज नहीं रहता कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है। अगर आप क्लासेस ठीक से अटेंड करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसे एक भी नहीं रहेगा कि आपको नहीं आ रहा है।
आपको सब चीज, हर एवरीथिंग, हर क्वेश्चन आपको आता होगा, हर क्वेश्चन, और आपको बुक में लिखा है उससे ज्यादा आता होगा. हाउएवर द चैलेंज इज टू कवर. इसलिए पहले ये समझना आना चाहिए, पहले पेपर कवर करना है, उसके लिए मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. बिकॉज इको के पेपर में प्रॉब्लम आता है, मुझे बहुत सारा पता है बट उतना टाइम नहीं है लिखने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर ये सिचुएशन है तो बहुत प्रॉब्लम है, तो इट इज बेटर कि आपको पता ही नहीं है, तो हमें सॉर्ट करके लिखना है. इसलिए पहले आपका प्री प्लान होना चाहिए, मैं इस आंसर में ये लिखने वाला, इस आंसर में ये लिखने वाला. इसमें से थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है ये वाला, विथ रीजंस. ये वाला एग्री और डिसएग्री, इसमें बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको आपके थॉट प्रोसेस लिखना है. एंड ये दे विल गिव अ सिचुएशन, दे विल गिव अ सेंटेंस, एंड आपको लिखना है वेदर यू एग्री और डिसएग्री, एंड उसको आपको बराबर कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जो टाइम कंज्यूम करता है. क्वेश्चन नंबर जो 6 है 8 मार्क्स का, इसमें लॉज आ जाएंगे, या तो पीछे वाले जो चैप्टर्स है, लाइक मैंने बोला आरबीआई के फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, नेशनल इनकम के मेथड्स, 3 मेथड्स थे मैंने बोला, राइट. उसमें से दे में आज 3 मेथड्स आपको, या एक मेथड इन डिटेल पूछेंगे. इलास्टिसिटी पे क्वेश्चंस हो सकता है, मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेशन. तो कुछ भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. 8 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. 8 मार्क का क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर है. अगर कोई बोलता है सर इलास्टिसिटी पे आप क्या क्वेश्चन पूछोगे 8 मार्क का, तो मैं बोलूंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, हो गया पूरा चैप्टर कवर. एंड ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं. ट्राई टू टाइप ऑफ, लाइक डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, पूरा चैप्टर आ गया उसमें. तो आपका जितना टेक्स्ट बुक में कंटेंट है पूरा लिखते बैठोगे एज यू नो एवरीथिंग? नो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम. एंड ये लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, अगर एक क्वेश्चन छूट गया लास्ट का तो मतलब 8 मार्क्स गए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो एक हमें, जब भी मैं लिख के दूंगा तो मैं आपको पॉइंट्स भी बोलूंगा कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये लिखने चाहिए. एंड जो मैं नोट्स दूंगा, ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग यू नोट्स. वो नोट्स इतने अच्छे से करो, एंड दे आर इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. क्वेश्चन ये मैंने बहुत पहले ही नोट्स किए थे, जब मैं पहले से 12th इकोनॉमिक्स लेता हूँ, बट इसमें मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़े, बिकॉज देयर आर सम चेंजेस इन द syllabus. They have added some points, they have deleted some points, they have added some chapters, deleted some chapters. 2 chapters उन्होंने combine किए, like micro and macro economics, ऐसे अलग अलग chapter थे previous syllabus में. They have combined them and थोड़ा add किया उन्होंने उसमें. So ऐसे छोटी छोटी चीजें थी. तो मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा, अगर पॉसिबल है तो आज इवनिंग में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, यूटिलिटी एनालिसिस, राइट. आई ऑलवेज स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज अ समरी ऑफ द एंटायर बुक. फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, दैट इज अ समरी ऑफ द एंटायर बुक. इफ यू नो द एंटायर बुक, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द समरी. लाइक एग्जांपल, आप एक बुक पढ़ रहे हो और पीछे उसका समरी लिखा है, वो सस्पेंस है, उसमें पूरा नहीं लिखा होता है, खाली क्या मेन कैरेक्टर से वो लिखा जाएगा. लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आपको जब आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे और फिर पीछे वाला पढ़ोगे तो आपको जल्दी क्लिक होगा. इसलिए राइट, फर्स्ट चैप्टर इज अ समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स. आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, अरे ये तो ये पूरा चैप्टर है, ये तो ये पूरा चैप्टर है. देयरफॉर आई टेक द फर्स्ट चैप्टर सबसे एंड में. तो इवन इट रिड्यूसेस माय, लाइक मुझे जितने एफर्ट्स पहले डालने पड़ेंगे, मुझे हर चीज बोलती बैठनी पड़ेगी, एंड में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने पूरा चैप्टर समझा है, टर्म्स हमें पता है, तो हम इजीली को रिलेट कर सकते हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर. ये हमारा सिलेबस है, राइट. आई एक्सपेक्ट यू विल बी हैविंग ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट बुक. सबसे छोटा बुक इको का है, सबसे छोटा बुक. बट मैं बोलता हूँ ये जो सीखोगे ना, दैट विल रिमेन विथ यू फॉर लाइफ टाइम. जो भी मैं सिखाऊंगा ना लाइफ टाइम रहेगा. That will helpful for you in preparation of your other exams as well. कोई भी एग्जाम जाओ आप लाइफ में, इको रहेगा, और इको के लिए ये सिलेबस रहेगा. सो 12th इको खाली आपको 12th के मार्क्स लाने के लिए हेल्प करेगा,
that will help you in throughout your life. ये एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है जो 11th इकोनॉमिक्स नहीं करता. 11th इकोनॉमिक्स पॉपुलेशन के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इनके बारे में बात करता है, एंड जिससे हम तंग आ चुके हैं, जो हम बचपन से सीखते आए, एंड वी हेट दैट. 12th economics talks about your nature of seller. It talks about the economy. वो जो हम challenges फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करता है, उनकी solutions देता है. Basically there are two types of economics. लिख लेना, right? Economics ये there are two thought processes. ऐसे बोला तो भी चलेगा. Schools, right? One is पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं जस्ट समझा रहा हूं, सिंपल है. एंड दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक. आप बोलो सर आपने तो बोला माइक्रो एंड मैक्रो, वो स्टडी है. इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो. बट ये थॉट्स है, थॉट्स. एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नॉर्मेटिव. Positive economics talks about facts, and normative economics gives judgments, opinions, एग्जाम्पल हमारे पीएम, हमारे सीएम दोनों टीवी पे आके आजकल जो बात करते हैं वो किसको भी नहीं समझ में आता. आते कोरोना हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, दे ओनली टॉक अबाउट जो है वो, आगे क्या करने वाले कोई नहीं बोल रहा, बराबर. सो दे आर गिविंग फैक्ट्स, वो पॉजिटिव है. बट कोई बोलता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये दवाई आनी चाहिए, ये करना चाहिए गवर्नमेंट ने. हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. हम नॉर्मेटिव है. We pass opinion, we pass judgments. India is a overpopulated country. Fact is a positive economics. India should do this to curb the population. We are passing the judgments. We are being normative. Try to understand. Now, example. India, which is looking to be a developed country, a leading country, actually faces the problem like health and everything. हमारे पास sufficient hospitals नहीं है, कुछ नहीं. ये सामने आया है obviously. ऐसे नहीं कि सब लोग बोलते हैं हम आगे जाएंगे हम आगे, बट ये challenges है हमारे पास. ये जो सामने आया कोरोना की वजह से जो दिख रहा है, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, हमारे पास पुलिस अवेलेबल नहीं. ये पहले किसी ने उस पर इतना गौर से नहीं बोला था. नाउ दैट फैक्ट हैज अपीयर्ड, इट इज अ पॉजिटिव. एंड उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर ये कोई जजमेंट पास कर रहा है, ही इज बीइंग नॉर्मेटिव. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जो लॉज है ना इकोनॉमिक्स के, दे आर पॉजिटिव. लॉज आर पॉजिटिव. वो खाली बोलते ये चीज है बस, बट उसको यूज कैसे करना है, उस लॉ को हमें ओपिनियन बनाना है. वी आर बीइंग नॉर्मेटिव. सो पॉजिटिव से हम नॉर्मेटिव की तरफ जा रहे हैं. जिसने भी लॉ लिखा है, he has given the fact, he has given the judge, right? He has not passed the judgment. उस लॉ को उठा के हमारे बिजनेस के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमने क्या करना चाहिए. अगर ये मैं जब बात कर रहा हूं, आई एम बीइंग ए नॉर्मेटिव पर्सन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या है इज ए पॉजिटिव, एंड क्या होना चाहिए इज नॉर्मेटिव. सो जो हम स्टडी कर रहे हैं लॉज वगैरह, दैट इज नॉर्मेटिव. एंड इनमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, राइट? क्या क्या यूजेस है, मतलब ये हम नॉर्मेटिव करें तो वी आर स्टडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ positive and normative economics or science. There are economics can be like it is science, positive science as well as normative science. So
ये आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, हमें क्या क्या है, हमारा क्या स्कोप रहेगा, हम कैसे करेंगे। कल मेरा फिर 7:30 को लेक्चर है, राइट। सो फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। बाय द इवनिंग आई विल शेयर द नोट्स विथ यू, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आपके पास रहेगा। वी आर स्टार्टिंग विद द यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर। इवन कल मैं आपको इसका वेटेज भी दे दूंगा, लास्ट टाइम इस चैप्टर का कितना वेटेज था वगैरह, राइट। हम और एंड में जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, या उस नोट्स में एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में पूछे थे, ठीक है। सो ऐसे हम करेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि आज इकोनॉमिक्स में एक्चुअली क्या है और क्या स्टडी करना है। एंड ट्रस्ट मी, इको विल बी इंटरेस्टिंग, इको विल बी इंटरेस्टिंग। सो राइट, 9 बज चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कल से हम, मैंने जैसे बोला, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं। या एल्स कल जब मैं ले लूंगा उसके बाद टेक्स्ट बुक से रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है, बट पढ़ते रहो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ऑन दिस नोट, एंड ऑब्वियसली एवरी टाइम से हमें कम टाइम लगेगा सिलेबस कवर करने के लिए। जैसे मैंने बोला एग्रीगेट बोल के एक चैप्टर था, 9 to 10 लेक्चर्स लगते थे, मतलब वो ऑलमोस्ट 2 मंथ चलता था, बिकॉज हम वीकली लेते हैं ना इको, तो 2 मंथ ऑलमोस्ट चलता था। तो नाउ it is been replaced by the index number which won't take more than 3 to 4 lectures. So almost अपने पास 1 मंथ पहले सिलेबस कवर करने के लिए चांसेस है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। अच्छा, किसी के पिंग वगैरह नहीं आज, ऐसे पूछने के लिए एज सच ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, यस यस, सब चीजें आज सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर हम आज रुकते हैं आज के लिए, थैंक यू।